Hello students, today we are going to start EVS 2 lesson 7 from shelter to village settlement from page number 30. 7.1 Shelter. In the fifth lesson, we saw that the Neanderthals lived mainly in caves. At that time, the climate in Europe was extremely cold. The Neanderthals could protect themselves from the freezing temperature because they wore leather clothing and made use of fire. Perhaps that was not enough. That is why they used animal hides to erect tents inside the caves for warmth. Wherever necessary, they also built huts in the open. फिफ्थ लेसन में हम लोगों ने देखा कि निदर्थल्स जो थे वो केव्स में रहते थे। उस समय जो है क्लाइमेट यूरोप का जो था बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड था। देन निदर्थल्स जो थे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि वो लेदर क्लोथिंग पहनते थे और फायर का यूज़ करते थे। देन उसके ये भी काफ़ी नहीं था, जिसके कारण से वो यूज़ करने लगे एनिमल हाइड्स, मतलब जो टेंट केव्स के अंदर वो टेंट बना के रहने लगे गर्म रखने के लिए। देन वेर एवर नेसेसरी दे ऑल्सो बिल्ड हर्ट्स इन द ओपन, और ज़रूरी होता था तो ओपन में भी हर्ट्स बना के रहते थे। सी देयर आर वन पिक्चर्स गिवन हियर, अ वार्म 2-room tent erected by Neanderthal man inside a cave, फ्रांस। यहाँ पे जैसा टेंट वो बनाते थे वो पिक्चर्स दिया है। 7.2 Seasonal camps. In the Middle Stone Age, groups of Homo sapiens had established camp all over the world. At that time, the climate was getting warmer everywhere, the environment was changing, and with it, the diet of Homo sapiens was also undergoing change. मिडिल स्टोन एज में जो होमो सेपियंस के ग्रुप ने कैंप इस्टेब्लिश किया, पूरे वर्ल्ड में कैंप बनाया, और वहाँ जो क्लाइमेट जो था वो वार्मर था, जिसके कारण से एवरीवेयर जो है इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहे थे, एंड जिसके कारण से उनका डाइट भी जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। By the time of the Middle Stone Age, big animals like momos were on the way to extinction due to the changing environment, and also because they were on hunted on a very large scale. That is why Homo sapiens had largely turned to fishing. He also began to depend more on hunting. See here, page number 31, there are given one pictures, mammoth and elephant. The mammoth was an ancestor of the elephant. However, he was much bigger in size compared to the elephant. मोमोज जो थे वो एलिफेंट्स के एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, जो एलिफेंट के साइज से कंपेयर करने पे बहुत ज़्यादा बड़े थे। There are picture also given here, a mammoth and elephant. Smaller animals like the wild boar, deer, mountain goat and sheep. जैसे जैसे टाइम बीता मिडिल स्टोन एज में बहुत सारे जो बड़े बड़े एनिमल्स थे, जैसे मोमोस, ये सब जो है वो ख़त्म होने लगे इन्वायरमेंट चेंजेस के कारण से, क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, एंड बिकॉज दे वर हंटेड ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, क्योंकि उनका शिकार भी बहुत लार्ज स्केल में होने लगा, जिसके कारण से भी वो ख़त्म होने लगे, एक्सटिंक्ट होने लगे। देन दैट इज़ वाई होमो सेपियंस जो है, जिसके कारण से होमो सेपियंस जो है वो फिशिंग की तरफ घूम गए, मतलब फिशिंग करने लगे, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग पे जो छोटे छोटे एनिमल्स रहते थे, या जैसे वाइल्ड बोर्स, डियर, माउंटेन गोट्स, ये सब सीप, ये सब के हंटिंग पे डिपेंड करने लगे फूड के लिए। The changed diet pattern enabled the group of Homo sapiens to roam to faraway regions. They moved their camp to different places according to seasonal changes. There they harvested seasonal wild greens and gathered seasonal fruits and roots.
They would find out the best seasons for fishing and use the knowledge to their advantage. By observation, they discovered the best hunting grounds. For this reason, they stayed in one place for longer period. They cleared jungle by felling trees and set up their seasonal camp in the clearing. See, there are one picture also given here in the Middle Stone Age, a reconstruction of a seasonal camp. जो उस समय एक सीजनल कैंप बनाते थे अलग अलग जगह पे जाके, तो वो पिक्चर्स दिखाया गया मिडिल स्टोन एज का। ओके, होमोसेपियंस जो है दूर दूर जाने लगे अपने, जिसके कारण से उनका डाइट पैटर्न जो है वो दिखने लगा, चेंज होने लगा। देन वो एक अपने कैंप्स जो है वो भी मूव करने लगे डिफरेंट प्लेसेस पे अकॉर्डिंग टू द सीजनल चेंजेस। जैसे जैसे सीज़न चेंजेस होता था वो अपने कैंप जो है अलग अलग जगह पे लगाते थे। देयर दे हार्वेस्टेड सीजनल वाइल्ड ग्रेन्स, वहाँ पे वो खेती करते थे अलग अलग जंगली वाइल्ड ग्रेन्स का। देन वहाँ पे सीजनल फ्रूट्स वगैरह, रूट्स वगैरह गैदर करते थे फूड्स के लिए। देन दे वुड फाइंड आउट बेस्ट सीज़न जो है फ़िशिंग के लिए, और उन्होंने खोज निकाला जो बेस्ट सीज़न थे फ़िशिंग के लिए, और अपना नॉलेज जो है उसका यूज़ करने लगे फ़ायदे के लिए। उनके ऑब्जर्वेशन के कारण से वो सबसे अच्छे हंटिंग ग्राउंड्स का जो है डिस्कवर किए, और इस रीज़न के कारण से वो एक जगह पे ज़्यादा समय तक रहने लगे। फिर वो जंगल्स क्लियर करने लगे, ट्रीज़ वगैरह को हटा के वहाँ पे अपना कैंप लगाने लगे। See here, one picture also given here in the New Stone Age, a reconstruction of a village settlements. One pictures दिया गया है यहाँ पे जो विलेज सेटलमेंट का रिकन्स्ट्रक्शन हुआ न्यू स्टोन एज के टाइम में, जब ये सब लोग एक साथ रहने लगे थे। ओके, 7.3 Village settlements. The way of life of humans in the New Stone Age was completely different from that of humans in the Old Stone Age and Middle Stone Age. During this period, humans became producer of food grains. The beginning of cultivation is the characteristics of the culture of the New Stone Age. In the hunting and gathering way of life, it is necessary to keep moving all the time. However, agriculture make it possible to store food and use it over a longer period. Hence, there is no need to keep moving constantly. Moreover, the nature of agricultural work made it necessary to stay in one place. Therefore, people established permanent village settlement and live in them generation after generation. In the next lesson, we shall review the social organization and the culture of these village settlements. न्यू स्टोन एज के जो ह्यूमंस का लाइफ था, वे ऑफ लाइफ था, जो रहने का तरीका था, वो मिडिल स्टोन एज और ओल्ड स्टोन एज से बिल्कुल डिफरेंट था। इस पीरियड में उन ह्यूमंस जो है वो फूड ग्रेन्स की खेती करने सीख गए थे, और ये जो न्यू स्टोन एज का जो बिगनिंग ऑफ कल्टीवेशन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है न्यू स्टोन एज का। जब भी वो हंटिंग और गैदरिंग वे था उनका लाइफ का, हंटिंग करके और फूड गैदर करके, फ्रूट्स वगैरह गैदर करके वो अपने फूड जो खाने की डाइट जो है फुलफ़िल करते थे, नीड्स जो है फुलफ़िल करते थे। तो इसके कारण से उन्हें हमेशा मूव एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था। लेकिन जब भी वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए फूड ग्रेन्स का, जिसके कारण से वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है फूड ग्रेन्स जो है वो उसकी खेती करने लगे और उसे स्टोर करके रखने लगे, जिसके कारण से एक लंबे समय तक वो किसी एक प्लेस पे रह सकते थे। तो उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं हुई कि वो एक जगह से दूसरी तरफ मूव करते रहे। तो द मोर ओवर द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, ये जो एग्रीकल्चर वर्क जो है वो पॉसिबल कर पाया कि ह्यूमंस जो है एक ही प्लेस पे रहने लगे, जिसके कारण से वहाँ पे परमानेंट विलेज सेटलमेंट इस्टेब्लिश हो सका। लोग जो एक दूसरे के पास हट्स बना के रहने लगे, एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वहाँ पे ही लोग रहने लगे एक ही प्लेस पे। नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन और विलेज सेटलमेंट्स के कल्चर्स के बारे में। सी इन पेज नंबर 33 देयर आर गिवन वन, डू यू नो दिस?
Do you know this? The Earth is subject to cycles of glacial and interglacial periods. In the glacial period, most of the Earth's surface is covered with ice sheets and the climate is extremely cold and dry. The level of water in the sea falls because a lot of it is converted into ice. An interglacial period is the period between two glacial periods. During the interglacial period, a large part of the ice on the ground melts. Sea levels rise. The climate becomes warmer and more humid. When some region in the world experience a glacial, Asia and Africa experience heavy rainfall. On the other hand, when some regions experience an interglacial, Asia and Africa experience poor rainfall. About 25 lakh years ago, that is in the times of Homo habilis, the climate had started becoming extremely cold and dry. During the period from 18 lakh years to 11,000 years ago, there have been four major cycles of glacial and interglacial period. This is also the period when the history of human culture from Old Stone Age to Middle Stone Age took shape. About 11,000 years ago, the last glacier period came to an end, and the current interglacial period began. The climate started to become warmer and more humid. Again, agriculture and the new Stone Age also began at about the same time. अर्थ जो है वो वहाँ पे साइकिल्स चल रहा था ग्लेशियर इंटरग्लेशियर पीरियड का इन द एंशिएंट टाइम में। तो उस समय जो है ग्लेशियर पीरियड मतलब जब अर्थ जो है पूरे आइस शीट से कवर्ड रहता है और क्लाइमेट जो है एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई रहता है। जो लेवल ऑफ वाटर का रहता है वो बहुत कम हो जाता है और बिकॉज ए लॉट ऑफ इट क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। देन इंटरग्लेशियर पीरियड मीन्स जो है पीरियड बिटवीन टू ग्लेशियर पीरियड। इसमें जो लार्ज पार्ट है आइस का ग्राउंड का वो मेल्ट हो जाता है और सी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो क्लाइमेट जो है वो वार्मर हो जाते हैं एंड मोर ह्यूमिड हो जाते हैं। कुछ रीजन में जो है ग्लेशियर एक्सपीरियंस करते वर्ल्ड में, कुछ रीजन जो है वर्ल्ड के वो ग्लेशियर एक्सपीरियंस के, जैसे एशियन अफ्रीका जो है वहाँ पे हैवी रेनफॉल हुई। और कुछ अदर हैंड सम रीजन में जैसे इंटरग्लेशियर एक्सपीरियंस किए एशियन अफ्रीका में जो वहाँ पे पुअर रेनफॉल हुई। 25 लैक्स ईयर्स पहले जो है होमो हैबिलिस के टाइम में जो क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई था। और ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 18 ईयर्स टू 11,000 ईयर्स अगो यहाँ पे फोर मेजर साइकिल्स थे ग्लेशियर और इंटरग्लेशियर पीरियड्स की। और दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड जब भी वो भी ऐसा भी पीरियड था जब भी ह्यूमन कल्चर की हिस्ट्री जो थी ओल्ड स्टोन एज से मिडिल स्टोन एज तक का शेप हो रहा चेंज हो रहा था। देन अबाउट 11 ईयर्स अगो जो है द लास्ट ग्लेशियर पीरियड जो है वो ख़त्म हुआ और करंट इंटरग्लेशियर पीरियड जो है स्टार्ट हुआ। देन द क्लाइमेट जो है वो वार्मर होना स्टार्ट हुआ और ह्यूमिड होना फिर से स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर और न्यू स्टोन एज जो है वो स्टार्ट हुआ उसी टाइम में। नाउ दिस लेसन इज completed. You have to complete your workbook. Thank you. Have a nice day.